ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ 21 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ GVK ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੈ? ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ GVK, ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2016 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 74 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 75 ਅਨੁਛੇਦ 75 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 75 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 75 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 75 1A, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 15%। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਰਟੀਕਲ 75 1A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 78। ਆਰਟੀਕਲ 78 ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 78 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੜੀ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 78। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਆਯੁਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚੁਣਾਵ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੁਕਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 324 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ,
इलैक्शन कमीशन ये कदों बनया सी? ये बनया सी 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ। बाकी 25 जनवरी थानू पता ही है, आप वोटर डे भी मनाते हैं ना, मतदाता दिवस भी होंगे वोटर डे, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो तुसी। हुण अपने देश से ना 3 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, ठीक है, एक होगा चीफ इलैक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो 2 होर इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, टोटल 3 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। तो इन्हों तो इन तीनों चों एक ही होगा, इन्हों का चीफ होगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट ये कौन ने जोड़े चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने? तो एट प्रेजेंट जोड़े चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने उन्हें सुशील चंद्रा, ते बाकी बचे 2 इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? एक तो राजीव कुमार, ठीक है भाई, ते दूजे वाला है AC पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे है शायद इसका पूरा नाम, है ना। ये 3 ने भाई, ठीक है। बाकी जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे इसका जो कार्यकाल है वो किन्ने साल का होंगे? 6 साल का इसका कार्यकाल होंगे। तो 65 साल यदि मैक्सीमम एज हो सकती है, या तो 65 साल की उम्र से रिटायर हो जाऊगा, या फिर 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर होगा। बाकी इनू हटा कौन सकता है यदि पोस्ट तो इनू हटाने का प्रोसैस बई इन्ना ईजी नहीं है, ठीक है ना। इलैक्शन कमिश्नर इनू हटाने का सेम प्रोसैस है जिमें सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटाने का, मतलब पार्लीमेंट हटाएगी, पार्लीमेंट हटा सकती है, ठीक है, ये याद रखना है तुसी। नैक्सट आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बई पंजाब जीके तो आया सीगा, है ना, बब्बर अकालियां बारे कि ये जिहड़ी लहर है कदों शुरू हुई है। तो ये लहर जो आप देखिए 1921 तो शुरू हुई सी ते 1925 तक इन्हों का प्रभाव रहा है, ठीक है। तो मेनली जो इन्हों का प्रभाव रहा वो भी अपना जोड़ा बीस्ट दबाव है उस वाल ज़्यादा रहा इन्हों का। बाकी जो बब्बर अकालियां का संस्थापक पूछा जाए, है ना, या इन्हों के जोड़े भी मतलब मोढी होए ने, है ना, उन्होंने बारे पूछे जाए तो तुसीं 2 नाम याद रख सकते हो। एक तो मास्टर मोता सिंह, मैं लिख देंगे इतने, मास्टर मोता सिंह। तो एक बंदा होर याद रख सकते हो तुसीं, किशन सिंह गड़गच, किशन सिंह गड़गच, ठीक है भाई। नैक्सट एक बई ये व्यक्ति सीगे MS वत्स, ये अपने जोड़े आर्कीओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना वो काम करते सी। इन्होंने किहड़े शहर जी अपनी हड़प्पा सभ्यता है ना उत्थे खुदाई करी सी, वे किहड़े शहर नाल संबंधित ने? तो इन्होंने अप्रोक्स 1924, ठीक है, उस टाइम हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदाड़ो, है ना, ठीक है। उत्थे इन्होंने जिहड़ी भी मतलब खुदाई हो रही सी वो इन्हों के अंडर हो रही सी, ठीक है, ये याद रख सकते हो तुसीं MS वत्स बारे, ठीक है। इस तो इलावा और अच्छा बाकी मोहनजोदाड़ो की खोज किन्ने करी है? और व्यक्ति होर ने, रखल दास बैनर्जी, RD बैनर्जी, ठीक है, और लग गए भाई। बाकी ये है कि उस तो बाद भी खुदाई च मतलब काफ़ी योगदान इन्हों का रहा है ना, कई साइटां वगैरह इन्होंने खोजियाँ। बाकी हड़प्पा सभ्यता का जो सब तो पहला शहर से वो किहड़ा सी? वो हड़प्पा ही सीगा भाई, रावी नदी के किनारे, है ना। वो किने खोजिया सी? कमेंट करके दसना तुसीं, ठीक है। तो बाकी पंजाब च जो शहर है रोपड़, है ना, वो भी हड़प्पा सभ्यता का शहर है, वो YD शर्मा सीगे, उन्होंने खोजिया सी, ठीक है। नैक्सट एक क्वेश्चन बई संयुक्त राष्ट्र संघ है जो अपना यूनाइटेड नेशन ये उत्ते आया हुआ सीगा, ठीक है। ये बारे आप मेन 2-3 पॉइंट वेख लेंगे हैं, जिमें 24 अक्तूबर 1945 में बनया सी। 24 अक्तूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, UN डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो किन्ने मैंबर ने? टोटल 193 मैंबर ने भाई। तो जोड़ा सब तो नवा मैंबर है वो 2011 च बनया सी साउथ सुडान, ठीक है, जिसकी राजधानी है जूबा। और
एट प्रेजेंट 193 मैंबर ने। बाकी 2 मैंबरां नूं ऑबजरवर स्टेटस भी मिले हुआ है, ऑबजरवर नेशन, ठीक है। हालांकि ये मैंबर फुल मैंबर नहीं है, फुल मैंबर 193 ने, 2 ऑबजरवर नेशन ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशनस की जो लैंग्वेज पूछी जाए तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ने इन्हों दी। हिंदी हैगी है नहीं, हिंदी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है भाई। बाकी जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग पूछे जान, मतलब ये पूछे जाए कितने प्रमुख अंग ने, तो वह भी 6 ने भाई, है ना। तो एट प्रेजेंट इन्हों का महासचिव कौन है, सैकटरी है जोड़ा महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। बाकी इस तो अलावा तुम होर यूनाइटेड नेशन बारे काफ़ी कुछ है पढ़न, है ना, एक बार देख लियो। नैक्सट है भाई पंचायत तो भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट च पंचायत तो कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, तो प्लीज़ तुम पंचायत वाले टॉपिक में पक्का करके चलो, ठीक है। पंचायत जोड़े है आर्टिकल 243 तो शुरू होंगी है ना, तो 243 ए बी इदा करके 243 ओ तक चलती है, ठीक है ना। एक एक करके इन्होंने सारी शिफ्टा च प्रश्न पूछ ले, हूँ ये 243 जी वाला क्वेश्चन पूछे रहे इन्होंने, है ना। तो पंचायत की जी शक्ति है, जिम्मेवारी है ना, रिस्पोंसिबिलिटीज़ वगैरह ये किहड़े आर्टिकल च ने, 243 जी च ने। तुसीं भी सारे ए तो लैके ओ तक मेन जोड़े भी है सारे तो चलो याद भी नहीं होने, पर मेन जिमें पावर्स हो गई पंचायत की, है ना, रिस्पोंसिबिलिटी वगैरह वो वेख लियो, ठीक है। बाकी एक तो चलो मैं थोड़ा इत्थे ही दस दिता 243 के च की है, ये हाले तक पूछा नहीं भाई, ठीक है, हो सकता है आने वाले पेपर पूछे जाए। 243 के च की लिखा हुआ है भी जो पंचायत का चुनाव होंगे है ना, उन्होंने कौन कराता है, तो पंचायत के चुनाव को कराता है स्टेट इलैक्शन कमीशन, मतलब जो राज्य का चुनाव आयोग है ना, वो कराऊगा। ये तो सारे को पता है कि जी पंचायत का इलैक्शन है वो कौन कराऊगा, राज्य का चुनाव आयोग कराता है ना। ये किहड़े आर्टिकल च लिखा हुआ है, ये 243 के च लिखा हुआ है ना, ये देख लेना तुसी। बाकी पंचायत किहड़े भाग च ने, 15, ठीक है। बाकी ये मैं पहली वीडियो च काफ़ी बार दस चुका भी थोनों कि पहली पंचायत कित्थे बनी सी, कद पंचायतों को जोड़िया गया संविधान च, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 73वां संशोधन सीगा 1993 च होया, जो पंचायतों को संविधानिक दर्जा मिलिया सी। 11वीं अनुसूची च पंचायत ने, 12वीं च नगर पालिका है, ठीक है। पंचायतों का जोड़ा आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 40 भी हैगा। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो विलेजा मतलब अपने पिंडा पंचायतों का गठन करे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारा कुछ तुम देख लो एक बार, ठीक है। उस तो बाद लज्जा किताब की लेखक कौन है, तो बुक बई कल तक किसी शायद किसी शिफ्ट से नहीं पूछा सी, है ना, पर अज फिर पूछ लिया किताब बारे, तो तुम वेख लो एक बार। जी लज्जा किताब है ये लिखी हुई है बांग्लादेश की एक बहुत फेमस राइटर है तस्लीमा नसरीन, ठीक है, बांग्लादेश की फेमस राइटर है। हालांकि इहदी जिहड़ी बुक्स ने, है ना, वो बैन ने बांग्लादेश से। बाकी ये इतों कड्डी भी हुई है, देश निकाला इनू मिलिया हुआ है, ये इंडिया च ही रहिंदी है, ठीक है, ठीक है, तस्लीमा नसरीन भाई लज्जा। बाकी होर जिहड़ी भी बुक्स ने, है ना, फेमस तुसीं प्लीज़ वो सारी वेख लियो। बाकी मैं भी अपने वालों कुछ बुक्स ने उन्होंने स्क्रीनशॉट इत्थे लैके पाए ने, तुसीं भी स्क्रीनशॉट लै सकते हो। एक साइड ये बुक के नाम ने, ठीक है भाई, ये हिंदी च ने भाई, पंजाबी च टाइम लगना सी कन्वर्ट च, मैं हिंदी च ही पाते, तुसीं वेख लो एक बार, ठीक है। ये उन्होंने राइटर ने, जिवें चरक संहिता किने लिखी है, चरक ने, अष्ट अध्यायी किने लिखी है, पाणिनि ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मृच्छकटिकम सूत्रक हो गए, काम सूत्र महर्षि वत्स्यायनन हो गए, कदम्बरी बाण भट्ट, हर्षचरित्र बाण भट्ट, अमरकोश अमर सिंह, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, राज तिरंगणी कलहन। तो ये भाई सारी बुक्स ने। एक नैक्सट पेज हो रहा है, एक ये बुक है, ये भी है, ये भी देख लो। गीत गोविंद जयदेव ने, बीजी कबीर, महाभाष्य पतंजलि, योग सूत्र पतंजलि। तो भाई ये सारी तुम देख लो एक बार, है ना। एक पेज ये भी है, इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ARC दत्त, बम दर्शन भगवती चरण वोरा, समाजवाद क्यों JP नारायण, गीतांजलि चित्रगोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बुक्स ने भाई, ठीक है।
देख सकते हो तुसीं, जिन्नी की याद कर सकते हो कर लियो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो। नैक्सट प्रश्न आया हुआ सीगा जी, जिहड़ी कॉमनवैल्थ यूथ गेम्स ने, कॉमनवैल्थ गेम्स ने इन्होंने पूछिया, इन्होंने कॉमनवैल्थ यूथ गेम्स बारे पूछा, ठीक है। ये एक्चुअली होया की है, ये होनी सी 2021 च, ठीक है। इन्होंने पूछा भी जी 2021 की गेम्स ने है ना, वो पोस्टपोन हो गया हूँ क्योंकि करोना करके, नाले फिर ओलंपिक भी आ गया ना, तो फिर की कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई ने। ये होनी कितने सी है ना, ये पूछा गया ना क्वेश्चन से। तो ये होनी सी बई एक शहर है, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये शहर च होनी सी, ठीक है। ये शहर है कितने है, एक छोटी जी कंट्री है वैस्ट इंडीज च, ट्रिनाडो, ट्रिनाड एंड टोबैगो, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है, सॉरी सेंट्रल अमेरिका की, ठीक है। इतने होनी सी, ये 7वीं यूथ गेम सी, ठीक है, बट ये करोना करके की हो गई ने, पोस्टपोन हो गया ने। बाकी कॉमनवैल्थ यूथ गेम्स शुरू कदों हुई सी, ये शुरू हुई सी 2000 च, पहली हुई सी स्कॉटलैंड, ठीक है। बाकी जब आप नॉर्मल कॉमनवैल्थ गेम्स की गल करिए, कॉमनवैल्थ तो ये 1930 च शुरू हुई सी, जी पहली हुई सी वो हुई सी हैमिल्टन, जिहड़ा हैगा कनेडा च, ठीक है। बाकी 2018 च हुई सी लेटेस्ट जी 21वीं गेम सी कॉमनवैल्थ, ये आस्ट्रेलिया च हुई थी, है ना, हाँ आस्ट्रेलिया च हुई थी, ठीक है भाई। तो हुण जी होनी है 2022 च होनी है 22वीं कॉमनवैल्थ गेम्स, 22 च होनियां, ये होनियां बर्मिंघम, बर्मिंघम च होनी है भाई, ठीक है। बाकी 2026 वाली तुसीं आप वेख लियो। इस तो इलावा होर जिहड़ी गेम्स ने, जिवें फीफा वर्ल्ड कप हो गया है ना, एक कदों होना, नैक्सट कित्थे होना, मतलब ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप वेख लियो कित्थे होना नैक्सट, हॉकी वर्ल्ड कप वेख लियो नैक्सट कित्थे होना, ओलंपिक भी 2 तरह के होंगे हैं बई, समर लग होंदा है, विंटर लग होंदा है। ये जिहड़ा ओलंपिक 2021 च होया है ना, ये समर सीगा, ये नैक्सट कित्थे होना ते विंटर कित्थे होना, ठीक है। एशियन गेम्स वेखियो एक बार, एशियन गेम्स नैक्सट कित्थे होनियां, ये सारे प्रश्न ने जिहड़े आने वाले पेपरों च पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिहड़े भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट ने है ना, आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट जिन्ने भी ने, वो तुसीं अपने याद करके चलो बई। नैक्सट, लघु संविधान किहड़े संशोधन नूं कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो आप संविधान नूं है ना चेंज करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, वो तो उन्होंने की कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है बई, है ना। तो जो भी उन्होंने करते हैं, जिवें पहली बार कराया था उन्होंने अपने कहता भी पहला संशोधन है ना, पहली अमेंडमेंट ये 1951 च करी सी, फिर उस तो बाद दूजी करी है ना। तो जो भी करते हैं उन्होंने आप नाम दे देंगे, ठीक है। तो किहड़ा संशोधन है जिन्होंने आप लघु संविधान कहते हैं, तो यदा आंसर सीगा बई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन यानी 42वीं अमेंडमेंट जी हुई सी 1976, ठीक है। 42वीं संशोधन 1976, ये सब तो वड्डी संशोधन सी, इस काफ़ी कुछ सरकार ने की करिया सी, बदलिया सी, ठीक है ना। एक तरह का एक छोटा संविधान ही सी, ये समझ लो तुसीं, है ना। इन्ना ज़्यादा संविधान को बदल दिता सी सरकार ने कि वो एक अलग छोटा संविधान ही विच पाता सी, ठीक है। ये उस टाइम इंदिरा गौरमेंट सीगी, इस करके इनू इंदिरा संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा संविधान भी कहते हैं इनू, इंदिरा लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एक कद होया सी 1976, ठीक है भाई। नैक्सट, स्पोर्ट्स तो दूजा क्वेश्चन हो गया भाई। ये बार्सिलोना जिहड़ा ओपन है ना, टेनिस का एक कप है, ये किने जितया, तो ये जितया भाई राफेल नडाल ने। राफेल नडाल है जिहड़ा, ये स्पेन का प्लेयर है, ठीक है। बाकी जिन्ने भी स्पोर्ट्स इवेंट होए ने 2020 या 2021 उन्होंने विनर भी हुण पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक कल की शिफ्ट में आए हुए सी प्रश्न विनर बारे, एक अज की शिफ्ट च हो गया प्रश्न, ठीक है। बाकी टैनिस को देख लो तुसी, टैनिस के टोटल जिहड़े 4 ग्रैंड स्लैम होंगे हैं, ठीक है। टैनिस जिहड़ी गेम है
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਨੇ, ਟੋਟਲ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ US ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਿਮਲਡਨ ਓਪਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਓਪਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੰਡਨ ਓਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਮਲਡਨ ਓਪਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨ ਵਿਨਰ ਸਿੰਗਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੂਮੈਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵੀ, US ਵੀ, ਤੇ ਵਿਮਲਡਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਓਪਨ ਨੇ ਮੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ 4 ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਨਿਸ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, US ਤੇ ਵਿਮਲਡਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਈ, ਸਿੰਗਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿਨਰ ਮੈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿਨਰ ਵੂਮੈਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਈ ਸਿਡਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਡਬੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਡਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। ये बैंक है भाई स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये जी छोटी इंडस्ट्रियां ने, है ना, उन्होंने की है फंड वगैरह देंदा है। तो ये आंसर सीगा, ठीक है, क्वेश्चन ये आंसर सीगा भाई, ठीक है। बाकी ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ याद रखना ਤੁਸੀਂ कितने है, लखनऊ है। ये कुछ क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ पता लगे ने, ठीक है। बाकी जे कोई होर भी क्वेश्चन पता लग्या तो मैं शाम की जी वीडियो बनानी है, शाम वाली शिफ्ट की, है ना। हुण मैं दोए शिफ्टा की वीडियो अलग अलग ही बनानी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, वो कहते भी साढ़े कोल तो प्रश्न आए ही नहीं। तो बई शिफ्टा 'च पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हुण आपां ईवनिंग की जी भी शिफ्ट के क्वेश्चनों की वीडियो बनानी है, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।